Bonnie, thank you so much for the introduction, Rangashri मैम। और जैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो हमने जो आप सबने अभी वीडियो देखी होगी और जो कीबो ऐप हमने डेवलप किया है, तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि कोई भी कंटेंट हो, प्रिंटेड कंटेंट हो, हैंड रिटन कंटेंट हो, डिजिटल कंटेंट हो, कैसे उस कंटेंट को ऑडियो के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा पाए। क्योंकि एक जैसे ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी होती है जो पढ़ नहीं सकती, तो उनको भी ऑडियो से सुन सकते हैं। जो लोग जैसे कल मैडम ने वीडियो में भी बताया था कि अगर कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज मुझे नहीं आती तो मुझे वो भी अपने लैंग्वेज में सुनना है, तो मैं कैसे ऑडियो के माध्यम से सारा कंटेंट एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये हमारा एक बेसिक ऑब्जेक्टिव रहा है। तो ये जो सेशन है ये 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है और मैं चाहता हूं कि इसको हम ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिव रखें ताकि लोग बोर ना हो, ठीक है। और अभी फिलहाल अबाउट 48 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो ये मैं कोशिश करूंगा कि सबसे ज्यादा इंटरेक्टिव रखूं और मतलब ये एक एंगेजिंग सेशन बने, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में वी हैव डिवाइडेड दिस सेशन इन 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट विल बी I'll share my screen and demonstrate the Keebo application. I'm sure you have watched the videos, but still I'll like to take you through the entire process such that आपको पूरा चीज समझ में आ जाए, and then you can let me know if you have some queries, ठीक है। तो पहला सेशन वो करेंगे, दूसरा सेशन क्वेश्चन एंड आंसर्स। If you have some queries, I'll be happy to answer, but apart from that, I'll also quickly want to introduce और demonstrate अगर टाइम मिले थोड़ा, तो जो हमारा कीबो एक्सेस का जो डिवाइस है ये भी मैं देखूंगा। अगर थोड़ा टाइम मिले तो मैं लास्ट में फटाफट इसको भी डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ, ताकि आप सबको एक आइडिया आ जाए that how can you use the application in what scenarios, and in future also how can that device work and what it does. Okay, so let's get started. I'll quickly share my screen. Now we are at exact 50 participants, that's half a century, ठीक है। Let me know if you are able to see the screen, or then we can get started. Yes, we can see. You can see the screen, all right, ठीक है। So I've installed the Keebo application on my phone, ठीक है। तो मैं Keebo app को open कर रहा हूँ। So as soon as we open the Keebo application, if you are installing it for the first time, you will get a 7-day Prime Plus trial। मतलब जो वो trial है उसके बाद when you मतलब जब हम सब्सक्राइब कर लेते हैं तो this is how it changes। तो प्राइम प्लस का लोगो आ जाता है। दैट मीन्स यू now have unlimited access to the entire application, all the features without any hindrance. So now just to give you some start, when you install the application for the first time, this is the screen that you will get. This screen shows a list of all the languages supported by the Keebo application, and at this point of time आपको क्या करना है, that you have to tell the application what all languages you want to set, ठीक है। आपको कौन सी लैंग्वेजेस आती है वो लैंग्वेजेस को आप सेट कर सकते हैं। So for an example, I start with English. Now what you see, this list of languages, sorry, these are voices। जो मोबाइल फोन बोलता है ना, वो आवाज जो होती है उसके अलग अलग इंजिन्स होते हैं, and these engines will differ from one phone to the other। मेरे फोन में इतने सारे दिख रहे हैं, आपके फोन में शायद से 1-2 दिखे। जैसे अगर आपने कल वीडियो देखी होगी तो मैम के फोन में सैमसंग आ रहा था, सैमसंग की वॉइस, पर मेरा फोन सैमसंग नहीं है। So these list of voices can differ, but more or less you get an option to select the engine that you want to set. So in this, if I select speech services by Google, I get the list of all the voices which speak English. Now the difference is only in accent. English Australia, English United States, English India. As soon as you click on English India or the respective voice, it will say English language set. That means this is done. Now suppose after English, if I know Hindi or Gujarati, I select Gujarati. I select speech services by Google, Gujarati India. It says Gujarati language set. So that way I've set English, Hindi and Gujarati. I know these 3 languages, I've set them. Okay. Now after you can set any number of languages. There's no limit. After you are done this with the setting the voices, आपको simply done button click कर देना है, ठीक है। और डन बटन क्लिक करने के बाद आप इधर आ जाओगे, जब अगर आप पहली बार इंस्टॉल कर रहे हो तो, ठीक है। ये वन टाइम सेटिंग है। ये बेसिकली आपको बताने का एक मेथड है कि अगर आपको हिंदी टेक्स्ट मिले तो आप इस वॉइस से पढ़े,
अगर आपको गुजराती टेक्स्ट मिले तो आप इस वॉइस से पढ़े, इंग्लिश मिले तो इस वॉइस से। सो ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ऐप हो गई, सेट हो गई, पूरी सेटिंग्स हो गई ऐप की। अब एक सिनारियो लेते हैं कि लाइब्रेरी में बुक्स पड़ी है, ठीक है, और हमें वो बुक का जो कंटेंट है वो हमें एंड यूजर तक पहुंचाना है, ठीक है। तो हम कैसे उसको पहुंचाएंगे? तो फॉर एन एग्जांपल मेरे पास ये बुक है, ठीक है। बुक का सपोज फर्स्ट चैप्टर है, ये पेज है, मुझे स्कैन करना है और इसको मुझे डिजिटाइज करना है। तो मैं ये बुक को लूंगा, जो ऐप है ऐप में मैं कैप्चर टू रीड ओपन करूंगा, ठीक है। कैप्चर टू रीड ओपन किया, अब मैं ये बुक का जो भी वो कैमरा स्टार्ट हो जाएगा, एंड देन यू कैन एक्चुअली मेक श्योर दैट यू अलाइन द फोन करेक्टली, ठीक है। और टेक्स्ट को लेके now there are two buttons, offline and online. I'll demonstrate the online first and then I'll come to the offline one. So I'll arrange align the book and I will capture the document. As soon as I capture the document, you will hear a beep sound. So this beep is basically telling you that it's processing the text online. Remember, we clicked the button online. So it needs the internet or the data connection to process this text online. As soon as it's done, it gives you the text on the screen. Now, very simply, I press the play button and it starts reading it. So you got an idea, right? You click the photo, press the play button, it starts reading it out loud. अब ये जो text है, you can actually click on more options, settings में जाके increase the font size. Font is 1. Decrease the font size. So these are some of the other changes that you can do. You can even go to settings and increase the rate at which it is reading. Speed is 9. If I do speed 9, then If, like millions of people from all walks of life, your answer lies in between, I don't know, and I'm not sure. so yeah, you can change the speed and the font size and all the other settings also. So now what we did, just looking back, we had a book, we took the book, captured a photo and pressed the play button, it started reading. Okay, now let's say if I don't know English, I want to read it in Hindi. Okay, so what I'll do, I'll click on the translate button. The translation also has two capabilities, online and offline. Like I said, I'll demonstrate online. I click on online and click on proceed button. It'll ask me which language do I want to translate to. I quickly go and select Hindi. And in real quick time, it translated the entire document to Hindi. Now I click the play button. इंद्वाना परिचय खुशी को अधिकतम करना, क्या आप उतने ही खुश हैं जितना आप सोचते हैं कि आप हो सकते हैं? Sorry, the speed is slightly higher, I guess. Speed is 6. Speed is 5. इंद्वाना परिचय खुशी को अधिकतम करना, क्या आप उतने ही खुश हैं जितना आप सोचते हैं कि आप हो सकते हैं? यदि उत्तर हाँ है, तो इस पुस्तक में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि जीवन के सभी क्षेत्रों के लाखों Just लोग pause it here. तो देखा हमने, ठीक है, मतलब इंग्लिश टेक्स्ट था, हमने सिंपली हिंदी में ट्रांसलेट किया, प्ले बटन दबाया और इट स्टार्टेड रीडिंग इट आउट, ठीक है। तो दिस इज हाउ सिंपल इट इज। अगर आपको ये टेक्स्ट खुद सुनना है, यू एज अ यूजर वांट टू लिसन टू सम टेक्स्ट और ट्रांसलेट सम टेक्स्ट एंड लिसन टू इट और रीड इट, प्ले बटन प्रेस करे बगैर भी आप सिंपल उसको रीड भी कर सकते हैं। पर अब हमारा काम ये है कि हमें ये जो टेक्स्ट है वो हमारे जो मेंबर्स ऑफ द लाइब्रेरी है उन सबको पहुंचाना है, ठीक है। तो वो कैसे करें? तो उसके लिए हम इसको डाउनलोड करेंगे। मैं इसको डाउनलोड बटन प्रेस करूंगा, ठीक है, वो मुझे ऑप्शन देगा डाउनलोड एज डॉकएक्स, पीडीएफ एंड टीएक्सटी। We'll select PDF here. It'll ask you to name the file and I'll rename it as sample Hindi 1. Sample Hindi 1, I name the file. I click on OK. So when I click on download, this file gets downloaded in your file manager के अंदर जो downloads folder होता है ना, उसमें जाती है, ठीक है। तो डाउनलोड करने के साथ साथ हम इसको सेव भी कर लेते हैं, ठीक है, इन केस अगर फ्यूचर में यूज करना हो। तो सेव बटन प्रेस करेंगे, वो बाय डिफॉल्ट डेट एंड टाइम, इट टेक्स द डेट एंड टाइम ऑफ एज द नेम ऑफ द फाइल। यू कैन इरेज इट एंड देन सिंपली प्रेस फॉर एन एग्जांपल हिंदी 1, ठीक है, हिंदी 1 मैंने सेव कर दिया। अब हम एक डिफरेंस देख लेते हैं कि जो फाइल्स हमने सेव करी है, द फाइल्स दैट वी हैव सेव्ड,
you can access them through this button called view saved files. क्योंकि सेव करिए तो इधर सेव में से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। पर जो हमने डाउनलोड करी है वो हमें जाना पड़ेगा हमारे फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर के अंदर कुछ अलग अलग फोन में अलग अलग पाथ होता है, जैसे हम मेरे में ऑल फाइल्स के अंदर जाएंगे, इंटरनल स्टोरेज के अंदर, और डाउनलोड का फोल्डर होगा, ठीक है। द फर्स्ट फाइल दैट यू सी सैम्पल हिंदी 1, द फाइल दैट वी हैड सेव्ड, एंड दिस इज नाउ सेव्ड एज अ पीडीएफ, ठीक है। सो नाउ यू कैन select this PDF. अगर आप if you want to open it, let's say select the PDF, it will ask you to open with क्या, तो उसमें कीबोर्ड का ऑप्शन आएगा, you can select and open with keyboard, or else what you can do is long press it, click on share, and share में भी you will get an option to select keyboard. So either ways you can open this text. It basically gives you an attention कि हम इसको offline open कर रहे हैं, so you can ignore this text as well. और सिंपल प्ले बटन प्रेस किया। पेज 1 of 1 इंद्वाना परिचय खुशी को अधिकतम करना, क्या आप उतने ही And it started reading, ठीक है। तो लेट अस लुक एट अ सिनेरियो, हमने कैप्चर किया, डाउनलोड किया, पीडीएफ बन गई, ठीक है। नाउ वी शेयर दिस पीडीएफ टू एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा रीड इंडिया के यूजर्स का, उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। नाउ एवरीबॉडी कैन डाउनलोड द पीडीएफ, एंड जैसे मैंने शेयर किया, शेयर कीबोर्ड से करेंगे और प्ले बटन दबाएंगे तो देन इट स्टार्ट्स रीडिंग इट आउट, एज सिंपल एज दैट। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। सपोज आई एम अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप, ठीक है, टेलीग्राम का, ठीक है, और मेरे दोस्त ने मुझे ये फाइल भेजी। अब ये हिंदी टेस्ट फाइल है, आई गॉट दिस फाइल, ओके, assuming that a coordinator from Read India sent this to me. I click on it, ठीक है, it asked me open with keyboard, मैंने ओपन किया और सिंपल प्ले बटन प्रेस करके आई कैन स्टार्ट रीडिंग इट। सो दिस इज हाउ वी आर लुकिंग एट कि आप लोगों का रोल क्या होगा। आप लोग यू विल स्कैन द कंटेंट, सेव इट इन डिफरेंट फाइल्स एंड शेयर द फाइल विद द यूजर्स जो लाइब्रेरी यूजर्स हैं, एंड दे कैन ओपन इट विद कीबोर्ड एंड रीड इट। सो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि लाइब्रेरी के जितने रिसोर्सेज हैं हम उनको एंड यूजर्स तक कैसे पहुंचा पाए इजीली, ताकि वो पढ़ना है तो पढ़ सके या ऑडियो में भी सुनना है तो वो सुन सके। तो ये एक बेसिक ऑनलाइन वाली प्रोसेस थी, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो हमने सारी प्रोसेस करी, ठीक है, इसका जो ऑफलाइन वाला बटन था, ठीक है, अब जो ऑफलाइन फीचर है, ऑफलाइन ओनली वर्क्स इन इंग्लिश। There are advantages to offline that you do not need very high internet connection, मतलब इंटरनेट की जरूरत ही नहीं है, ऑफलाइन करता है, ठीक है, बट वो सिर्फ इंग्लिश में ही काम करेगा। और ऑफलाइन में आई जस्ट शो यू, ठीक है, तो मैं सेम थिंग, इंग्लिश टेक्स्ट है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेट मी शो यू, दिस इज प्रोसेसिंग ऑफलाइन एंड दिस इज द टेक्स्ट। नाउ इफ आई शो यू द डिफरेंस, if I have a different document, like this is a Hindi document, ठीक है, Hindi or any regional language, Kannada, Tamil, any non-English document, if I click a photograph of a Hindi document using offline, this is the text that you'll get. तो रीजनल लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए हमें ऑनलाइन प्रोसेस मतलब इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, बट इंग्लिश डॉक्यूमेंट ही है तो हम उसको ऑफलाइन भी प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आई विल आल्सो शो यू ट्रांसलेशन में जो दो ऑप्शन थे ना, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन, तो अभी मैं सेम हिंदी टेक्स्ट को ऑनलाइन कर रहा हूं। दिस प्रोसेसिंग इट ऑनलाइन, we have the text on the screen. Now I click on the translate button, ठीक है। लास्ट टाइम we had chosen translate online, ठीक है। Now if I click on translate offline, ठीक है, तो क्या होगा, when I click on translate offline, again the number of languages available in offline translation are very limited, ठीक है। So it's asking me Hindi too, let's say I want to do it in Gujarati just to demonstrate, ठीक है। When I click on translate button, it will still need the internet connection once. देखिए, मैं जब
ट्रांसलेट पे क्लिक करता हूँ, इट्स आस्किंग मी दैट द ऐप नीड्स टू डाउनलोड द फाइल टू प्रोसेस इट ऑफलाइन। ठीक है, तो ये जो ट्रांसलेशन में ऑफलाइन करना है ट्रांसलेशन, तो वो लैंग्वेज की फाइल एक बार तो डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो अगर मैं डाउनलोड बटन क्लिक करता हूँ इधर, सो देन इट विल से सेटिंग अप गुजराती ट्रांसलेशन। मतलब वो क्या कर रहा है, इट इज डाउनलोडिंग द गुजराती पैकेज such that in future when you want to translate the document to Gujarati, you do not have to download or need internet connection. So this is one time process of downloading the package, and it will download. Once it is downloaded, then it will translate, and now we have it. Now we have the text in Gujarati. Okay, so let's go back. Click on translate, translate offline, proceed. Translate Hindi to Gujarati, translate. Okay. So this time it did not ask me to download any file. It's translating this thing offline, and there we have it. So this is how the offline features work, offline scanning and then offline translation. In case if you, there is also an option कि आपको हर बार ये डाउनलोड नहीं करना है, you want to do it one time, you can go to settings, translation settings. Remember, we want to add voices in translation, sorry, add the packages in translation. So go to settings, translation settings, click on installed languages. You see English, Hindi and Gujarati. Okay, now I can add languages. For an example, I add Kannada. So it is now downloading the Kannada translation file. So next time I translate offline to Kannada, it will do it without the internet also. So this is the benefit of the offline translation. See, now Kannada is, we are able to have Kannada. If I click on translate, translate offline, and I do Kannada, translate. It will directly translate the text and give it to me. I hope मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, but please stop me in case if you are not able to understand, या मैं ज़्यादा तेजी से बोल रहा हूँ, या if there's any question that you have. So ये मेरा जो first part था वो मैंने cover किया, in which we saw how to set up the voices in Kibo app, how do you capture and read in audio, how do we save and download the text, and how do we use the offline features of the applications also. ठीक है, इन इतनी चीजों में आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कुछ पूछना है, और हमने ये भी देखा कि कैसे आप as coordinators of the center can use this app to send the files to the users जो Kibo app अपने फोन में डाउनलोड करके उसको सुन सकते हैं। तो हमने वो एक सिनारियो भी पूरा देख समझा कि कैसे हम उसको कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेरी है, डाउट है, if you have something, please let me know. I'll be happy to answer before I move on to the next thing. Bonnie, in the offline features, Yes. you had mentioned that there is the one the text gets translated. मैम आपकी आवाज बहुत पीछे से आ रही है। The text in the offline features, the text gets translated, but voice you can't hear yourself, isn't it? No, yes. Okay, sure, I'll just quickly demonstrate. अगर आप सबको याद हो तो हमने इंग्लिश, हिंदी और गुजराती 3 वॉइसेस सेट करी थी, बट ये टेक्स्ट कन्नड़ा है। ठीक है, so if I press play button, it will say go to settings and select Kannada voice. Keyboard doesn't know how do I read Kannada. So if I go to settings, TTS settings, and go to Kannada and select the voice, Kannada India, done. I come back and click on the play button. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಲೋ. ಇದು ಭಾಗಶಃ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೋ ಹಿಂಜರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣಾದಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. So it reads. So yeah, to answer your question, ma'am, reading सब में है. ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में रीडिंग है, ऑफलाइन में रीडिंग नहीं है, नहीं, रीडिंग इज देयर अक्रॉस. It's just that the accuracy of translation differs from offline to online. ऑनलाइन में हायर एक्यूरेसी आती है, ऑफलाइन में इतनी एक्यूरेट थोड़ी कम एक्यूरेसी आती है. So that is the only difference between online and offline. There's a query from Aarti. Can you translate
handwritten. ओके, हैंड रिटन के लिए इट्स प्रीफर्ड दैट वी प्रोसेस इट ऑनलाइन, क्योंकि हैंड रिटन में ऑफलाइन इतनी एक्यूरेसी नहीं आती. ओके, सो दिस इज अ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट एंड okay. So in case if you are able to see the video, ये text handwritten text है, and this is the output that we got on the screen. We have a sample English document with us. We are demonstrating English handwritten OCR on Kibo Access device with this handwritten note. You can see the accuracy with which it processed even a handwritten text. So अगर same thing, मैं इसको play कर सकता हूँ, translate कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ. All these things are available. But okay, just for your comparison, मैं इसको offline करके भी आपको दिखा देता हूँ. ठीक है? This is the output that you get on handwritten text with offline. You can see the difference between the accuracy of both the processes. So this is what I was referring to, कि online जो processes है, it has a better accuracy as compared to the offline capabilities. Yes, ma'am. Any other questions? We are we allowed to scan full book? Because I think there's a copyright issue. Do we have some guidelines, like we have to only, should we implement, when we implement this, do you have any guidelines for, copyright violations should not be there, that we copy the whole book or anything like that? Yeah, sure. So as long as our technology or the product is concerned, there is no copyright liability from our side. ठीक है, कि आप ये कंटेंट स्कैन कर सकते हो, ये कंटेंट स्कैन नहीं कर सकते. वी आर एज अ टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर. नाउ इफ द एंड यूजर हु इज यूजिंग द प्रोडक्ट, ठीक है, वो मतलब द कॉपीराइट ओनर्स इज ऑन द एंड यूजर, कि वो मटेरियल जो है, जो कॉपीराइटेड मटेरियल इन केस अगर है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है. ठीक है, सो दैट्स द ओनली थिंग. आई मीन देयर इज नो लिमिटेशन इवन फॉर अस, especially when we work with the visually impaired community, जहाँ पे पूरी की पूरी बुक डिजिटाइज की जाती है to make it accessible in audio. So there is a treaty called Marrakesh Treaty, under which if a content is inaccessible for somebody, ठीक है, ये कंटेंट एक्सेसिबल नहीं है किसी के लिए, और अगर हम इस प्रोसेस के थ्रू उसको एक्सेसिबल बना रहे हैं, ठीक है, तो वो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है अंडर दैट ट्रीटी. ठीक है, बट स्टिल द जजमेंट of whether this content, what are the copyright implications of using what volume is on the person or the end user who's using the service. So would you mind sharing that document with us? I mean, I'll share the जो Marrakesh Treaty है, हाँ, वो आपको I'll share the link and then you can go through it. Thank you. किसी को कुछ पूछना है, कुछ इस प्रोडक्ट के बारे में बता, आप एटलीस्ट इतना बता दो कि मतलब did you understand or not, was I too fast? Rangeshwari, let them practice once. They can download the app on their phones, right? Yes, they can download it. They can. Okay, I'll also show you. Simply आपको क्या करना है, you can go to Play Store. Google Play Store पे जाके आपको KIBO कीबो सर्च करना है. ठीक है, सबसे पहले जो होगा वो कीबो एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल आ जाएगा. ठीक है, इसको अनइंस्टॉल करके भी यहाँ मैं आपको एक बार दिखा सकता हूँ. ठीक है, ये स्क्रीन आएगी. इंस्टॉल पे क्लिक करना है आपको और वो इंस्टॉल करेगा आपको, और इंस्टॉल करने के बाद डायरेक्टली कीबो ऐप ओपन होगा एंड देन यू कैन लॉग इन. मैं लॉग इन भी दिखा देता हूँ. जस्ट आपको एक
एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि हाउ डज दैट लॉग इन प्रोसेस ऑल्सो हैपन. Just installing the app. So Bonnie, I think a step-by-step guide you can send so that they can translate and learn from it also, from the same Kibo app as a practice. ठीक है, मैंने जो डेमोन्स्ट्रेट किया ना अभी उसको मैं एक छोटा सा वीडियो बना के भी शेयर कर दूंगा so that they can use that as a reference. Yes, that will be better. Yes, I'll share that definitely. जैसे मैंने इंस्टॉल कर लिया ऐप को, कीबो प्ले स्टोर में गया, कीबो सर्च किया, इंस्टॉल किया, अब मैं ओपन कर रहा हूँ. ठीक है, ओपन करता हूँ तो ये मुझे परमिशंस पूछता है. ठीक है, परमिशंस को मैं ओके करके सारी परमिशंस को मैं अलाउ करूंगा या व्हाइल यूजिंग दिस ऐप पे क्लिक करूंगा. अगर इन केस आपके पास Android 11 फोन है, ठीक है, जैसे ये मेरा फोन Android 11 है, तो Android 11 फोन में एक एडिशनल परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है टू सेव एंड डाउनलोड द फाइल्स. तो ये बोलेगा कि ऑल फाइल्स एक्सेस की परमिशन हमें दो. तो ओके बटन पे क्लिक करेंगे. ठीक है, तो आपको सेटिंग्स में ले जाएगा और ये परमिशन भी आपको ऑन कर देनी है और बैक आओगे. ठीक है, तो आप मेन स्क्रीन पे आ जाओगे, ये वाली स्क्रीन पे. अब ये स्क्रीन पे साइन इन का एक ही बटन है, तो उसको आपको क्लिक करना है. वो आपके अकाउंट को फेच करेगा. ठीक है, फिर उसको जो भी आपका गूगल अकाउंट है उससे आप लॉग इन कर लो. लॉग इन करने के बाद ये स्क्रीन आएगी जो मैंने आपको बताया था ना कि वॉइस सेट करने की. सो व्हेन यू गेट द स्क्रीन यू कैन देन सिलेक्ट एनी वॉइसेस जो भी मैंने आपको पहले दिखाया था एंड आप डन बटन पे क्लिक कर दोगे, देन यू विल गेट दिस स्क्रीन. सो ऐसे आप पूरा ऐप को डाउनलोड करके सेटअप करके ये मेन स्क्रीन तक आ सकते हो. Bonnie, this app will work either any laptop or a desktop. We can download. No. This app is only on Android. I mean, desktop के लिए ये ऐप नहीं है अभी. It's only for use on phones. Desktop के लिए अगर if you want to scan the content on the desktop, that's when I showed you, right, the Kibo Access device. If you want to, if you don't have any questions on the app, and if in case if everybody is interested to know, Sir, this app is not compatible with iOS. Abhi it's only available on Android. We are building the iOS version, so iOS version will take some time, पर अभी के लिए Android पे है. Tabs में use कर सकते हैं ना इसको? हाँ जी मैम. Yes. Because we have given 300 tabs, Lenovo tabs to the children in the communities, and if they can download this. Yes, they can download it. Even they can download it on tab. Answer to your question, because you asked for iOS, you can download tabs also. Right? Ma'am, I've downloaded it in the tab. I've used it also. I translated one. Okay, fine. Thank you. तो और कोई क्वेश्चन, कुछ डाउट रहा, मैंने ठीक से समझाया? अब मुझे भी फीडबैक दे सकते हो. नहीं सर, आप बहुत थोड़ा फास्ट जा रहे थे, हमें समझ में नहीं आया. Can I ask one question to all the participants here? Right. Please write to us immediately on this chat who are interested for this, so that we can do the registration immediately. Just write in the chat box yes, so that we can take a screenshot and process the action, on it. In the meantime, Rangashri ma'am, do you suggest कि मैं just सबके information के लिए भी बता दूं Kibo Access device, if that helps? I hope the screen is visible. Yeah. ठीक है. So at any point of time अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप इसमें नीचे ऑप्शन में एक हेल्प का ऑप्शन है. ठीक है, यू क्लिक ऑन दी हेल्प बटन. ठीक है, ऐप के ट्यूटोरियल्स हैं वो तो ठीक है, पर अगर आपको हमारी टीम से डायरेक्टली कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट अस पे क्लिक कीजिए. ठीक है, अगर कोई बहुत ही इमीडिएट और अर्जेंट काम है और आपके फोन पे ही बात करनी है तो कॉल पे दबाइए. अगर कुछ डाउट है, क्वेरी है कि इसको क्या यूज करें, कैसे यूज करें, तो व्हाट्सएप के करें. अगर उससे भी थोड़ी लो प्रायोरिटी पे कुछ है तो आप डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं.
सो डायरेक्टली कीबो ऐप के अंदर अगर मैं डायरेक्टली कॉल बटन दबाऊंगा तो डायरेक्टली कॉल प्लेस हो जाएगा और आप उसको मतलब हमारे जो भी कंसर्न पर्सन है वो फोन पिक करके आपको हेल्प कर देंगे। तो कॉल, व्हाट्सएप और ईमेल 3 सपोर्ट है जिससे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। मैंने जो चैट में नंबर शेयर किया है वो मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। तो अगर मेरे से कुछ डायरेक्टली बात करनी है तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना आपके पास ये 3 ऑप्शन तो ऑलवेज अवेलेबल है ही हेल्प के अंदर। सर इसमें जो पेमेंट सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है तो ये क्या मतलब पेड वर्जन है या फिर फ्री? हाँ, तो ये पेमेंट सपोर्ट का जो है ना बेसिकली ये उन यूजर्स, क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे हैं ना वो रीड इंडिया के थ्रू सब्सक्रिप्शंस परचेज किए जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। बट उन यूजर्स के लिए कि जो पेमेंट करना चाहते हैं, इसके 2 वर्जन्स हैं, एक बेसिक वर्जन है और एक पेड वर्जन है, ठीक है। बेसिक वर्जन में ऑफलाइन चीजें जो हमने देखी ना, ऑफलाइन चीजें आर अंडर बेसिक वर्जन, ठीक है। बट ऑनलाइन जो प्रोसेसेस है वो सब्सक्रिप्शन के अंडर आता है। बट हम अभी की मीटिंग के कंटेक्स्ट में जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि रीड इंडिया सब्सक्रिप्शंस परचेज करके आप सबको दे देगा, तो आपके लिए पेमेंट सपोर्ट इतना रेलेवेंट नहीं होगा अभी के लिए। ओके सर, थैंक यू। Bonnie, this also gives access to all the internet e-books and all that? या सो इसमें जो बाकी जो ओपन ई बुक लाइब्रेरी का फीचर है वो बेसिकली इट डज गिव एक्सेस। वी हैव पार्टनर विद 2 लाइब्रेरीज, सुगम्य पुस्तकालय एंड बुक शेयर, बट दीज 2 लाइब्रेरीज आर विजुअली इम्पेयर्ड ओनली एक्सेस। मतलब ये क्लिक करोगे तो आप लॉगिन आईडी पासवर्ड पूछेंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यू नीड टू बी अ बोनाफाइड पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी। आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वो सब अपलोड करना होता है, तब आप not this. What I was asking was the entire internet. I mean, when they open anything in the internet, can they download and get the translation? इंटरनेट पे ट्रांसलेशन डायरेक्टली नहीं होगा, क्योंकि व्हाट वी सॉ सी ट्रांसलेशन आइदर यू कैप्चर द फोटोग्राफ, ठीक है। अब इंटरनेट पे द फाइल्स आर ऑलरेडी देयर इन वेब फॉर्मेट। उन फाइल्स को आप कीबो ऐप की मदद से डायरेक्टली ट्रांसलेट नहीं कर सकते। अगर करना है, मतलब ये जुगाड़ है, दिस नॉट लाइक द थिंग। प्रोबेबली इफ आई search something on Google, for an example, news, and if I have this article, ठीक है, एक second, and okay, if this is what I want to translate, ठीक है, तो I can, क्योंकि कीबो इमेजेस को एक्सेप्ट करता है, तो इसको मैं अगर स्क्रीनशॉट लूं, स्क्रीनशॉट लेके फिर मैं इस स्क्रीनशॉट को शेयर करूं कीबो से, and then स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट कीबोर्ड से मैंने शेयर किया। अभी वो बाय डिफॉल्ट उसको ऑफलाइन प्रोसेस करेगा। हम इसको जो अप एरो वाला बटन है ना वो ऑनलाइन प्रोसेसिंग के लिए है, तो क्योंकि ऑनलाइन में एक्यूरेसी बेटर आती है इसलिए हमने ऑनलाइन प्रोसेस किया। और फिर इस टेक्स्ट को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं या जो भी है। Okay. So you have to take a screenshot of the content in the interview, from the interview. Correct. Because Kibo accepts images. Either you click the image or you share any image with Kibo. So I hope people have got this idea. The coordinators and others, please practice it. It will be useful to get your feedback. Thank you so much. Thank you, Geeta ji. Thank you for giving this opportunity for us to demonstrate. No, it's a wonderful thing, and we will get back to you, Bonnie, very soon, right? जरूर, बिल्कुल। Thank you. Thank you. Sure. Thank you, everyone.